Hello aspirants, welcome to the online platform of GeoIS Academy, and today we are going to take the orientation session for the political science and international relation subject. In this session what we are going to see, we are going to look into the significance of political science and international relation optional subject for the UPSC civil service examination, and along with the significance we will also see that how many candidates have cleared this exam with the PSIR optional subject, and how can we score maximum with the PSIR optional subject, and we can clear the UPSC exam in very easy manner if we are going to take the PSIR subject. So let's start today's session. Here you can see that political science and international relation, and in this subject today we are also going to discuss about the syllabus of the PSIR in the UPSC. So let's start our today's session. सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि पॉलिटिकल साइंस और आईआर सब्जेक्ट में हमको कितने पेपर देखने वाले हैं. हमको पता है कि यूपीएससी ऑप्शनल में 2 पेपर हम लोग देखने वाले हैं. सारे ऑप्शनल में 2 ही पेपर होते हैं. पीएसआईआर में भी 2 पेपर हैं. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि इन दोनों पेपर्स में हम क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, क्या क्या कंटेंट हमको पढ़ना है. सो लेट्स स्टार्ट. सो हियर वी कैन सी दैट so here we can see that this is paper 1 and this is paper 2. So in the first paper हमने फर्स्ट पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज पार्ट 1 एंड द पार्ट 2. So in the part 1 what are we going to study? We are going to study about the political theory. The political theory is relatively new concept. ये उन लोगों के लिए न्यू है जो कि पहले पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए थोड़ा न्यू सब्जेक्ट है पॉलिटिकल थ्योरी, बट डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. और एक बार आप इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं. वो क्या बेनिफिट्स हैं हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं. सो द पार्ट 1 इज अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिकल thoughts, Indian political thought. Okay, so here we can see there are so many pictures are there in which these are the Western political thinkers, right from the Plato, Socrates, Aristotle, Machiavelli, Hobbes. These are all political theorists and political philosophers we are going to understand. और बहुत ज़्यादा interesting ये subject रहता है अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको पढ़ते हैं तो first we will learn about the Western political thought, and the second then we understand about the Indian political thought. Okay, in Indian political thought we will learn about the Gandhi, Nehru, Tagore, Kautilya, Buddhism, Rajaram Mohan Rai and some other people. So both these will be we are going to study in the part 1 of our paper 1. Okay, now what is the part 2? In part 2, this is the part 2. In part 2 we are going to study about the Indian governance and politics. Indian governance and politics. In this we will understand about the freedom struggle of India from the political point of view, along with the politics in India, contemporary politics in India. So we will also understand how the polity of India works, what is the structure of governance in India, like the federalism, the judiciary, the legislature, the executive, and the other phenomena which are going to happen in the Indian politics. So we will learn about the Indian government and politics in the part 2. So this will be our paper 1. Okay, now in the paper 2 what are we going to study? We are going to study about the comparative politics and international relation. Comparative politics is relatively new. Here we have seen that political theory is a kind of new subject for us, new topic for us. एंड द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यहाँ पे एक नया सब्जेक्ट है, वापस नया टॉपिक है, जो कि यूजुअली वो लोग जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा है उन्होंने नहीं पढ़ा है, बट ये काफी सिंपल है. पॉलिटिकल थ्योरी भी काफी सिंपल और अच्छा एनालिटिकल सब्जेक्ट है. ऑन द अदर हैंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. देन इंटरनेशनल रिलेशन वी आर गोइंग टू स्टडी. इंटरनेशनल रिलेशन में सारी डिटेल इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे हम लोग. अभी हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, उसके अंदर हम ये बात करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं. Then in the part 2 of this paper 2 we'll study about India and the world. In this section we will learn about the foreign policy of India and India's relationship with the rest of the world. बाकी countries के साथ इंडिया के रिलेशन कैसे हैं वो सारा हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं. Okay,
सो हियर वी कैन सी दैट PSIR ऑप्शनल जो है वो 500 मार्क्स का है, सारे ऑप्शनल 500 मार्क्स के होते हैं। 250 मार्क्स का जो आपका पेपर 1 होगा वो ये है, इसके 2 पार्ट हैं, और रिमेनिंग 250 मार्क्स का आपका पेपर 2 रहेगा जिसके ये पार्ट्स हैं। ओके, यूपीएससी ने स्पेसिफिकली पार्ट 1 और पार्ट 2 डिवाइड इस तरीके से नहीं किया है कि मार्क्स का कोई कंट्रीब्यूशन हो कि 125 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 125 इसमें से आएंगे, ऐसा नहीं है। पार्ट 1 और पार्ट 2 इंटीग्रेटेडली मिला के कितने 250 नंबर का होता है, और इसमें किसी भी पार्ट से कितना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट मोर और लेस जो है नियरली एक सिमिलर कंट्रीब्यूशन दोनों पार्ट्स का रहता है इन 250 मार्क्स में। इधर भी ऐसा ही है कि पार्ट 1 पार्ट 2 इंटीग्रेटेडली मिला के 250 नंबर का पेपर होता है। इसमें भी मोर और लेस आपको दोनों पार्ट से करीब करीब सिमिलर वेटेज ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ इस वाली स्लाइड में आपको ये समझ में आया कि पॉलिटिकल साइंस में 2 पेपर होने वाले, पेपर 1 और पेपर 2, और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के आपको 500 मार्क्स का पेपर होने वाला है, जो कि आपका ऑप्शनल का पेपर होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना एक बहुत ही मेहनत टास्क हो जाता है काफी लोगों के लिए, और ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना क्यों बहुत ज्यादा सही, ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सारे पेपर्स सारे एस्पिरेंट्स के लिए सेम रहते हैं, सारे कैंडिडेट्स के लिए सेम रहते हैं। हमको पता है कि यूपीएससी का सीएससी का पैटर्न जो हम लोग जान रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको ये पता है कि सबसे पहले मेंस में ऐसे का पेपर होगा, GS1, GS2, GS3, GS4 एंड देन ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2। यहां हमको ये चीज पता है कि यहां से लेके यहां तक के जो पेपर है, ये जो पेपर है, ये सारे कैंडिडेट्स के लिए सेम रहते हैं। ये पेपर सारे कैंडिडेट के लिए सेम रहेंगे, मींस सारा पेपर सबके लिए सेम आएगा, सबके लिए सेम कंपटीशन है। बट ये जो ऑप्शनल के 2 पेपर्स हैं, ये आपके डिफर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑप्शनल यू आर चूजिंग। तो जो पॉलिटिकल साइंस IR ऑप्शनल के साथ चलेंगे उनके लिए सबके लिए पेपर सेम रहेंगे, जो सोशियोलॉजी लेगा उनके लिए सोशियोलॉजी का पेपर रहेगा। तो यहाँ पे एक अपर हैंड आपको मिलता है अगर आप सही सब्जेक्ट चूज करते हैं, ऐसा सब्जेक्ट चूज करते हैं जो डेफिनेटली आपको एक अपर हैंड दे, आपका इंटरेस्ट भी उसमें हो और आप एक बहुत अच्छा स्कोर उसमें कर सकें। अभी हम कुछ मार्कशीट्स भी देखेंगे प्रीवियस ईयर की, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने कितना स्कोर किया है, उसी हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हम कैसे PSIR में मैक्सिमम स्कोर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2, ये जो ऑप्शनल के 2 पेपर होंगे, इन पेपर्स में हम अपना एक अपर हैंड रख सकते हैं। इसीलिए सही ऑप्शनल को चूज करना बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा ऑप्शनल चूज करेंगे जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करता ओवरऑल प्रिपरेशन में, और उसके अलावा ऐसा ऑप्शनल चूज करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप बहुत अच्छा स्कोर करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए हमको ऐसा ऑप्शनल चूज करना है जो हमको एक अपर हैंड दे, और ये आपको ओवरऑल सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करने में बहुत ज्यादा एक क्रूशियल रोल प्ले करता है ऑप्शनल। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ द थिंग इज, अभी तक जिन लोगों ने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज नहीं किया है, या फिर जिन लोगों ने PSIR ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर लिया है, उनको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ PSIR सब्जेक्ट की क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों हर साल इसको इस सब्जेक्ट के साथ अटेम्प्ट करने वाले नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की जो ओवरऑल नंबर है वो प्रोलिफरेट हो रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, PSIR में इंटरेस्ट ज्यादा क्रिएट हो रहा है, और क्या इसका रीजन है, और क्यों PSIR के साथ सक्सेस रेशियो रिलेटिवली क्या है, ज्यादा है। हमको यहाँ पे ये चीज को समझना पड़ेगा, और क्यों PSIR ज्यादा सिग्निफिकेंट है एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। ऑल द सब्जेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, ऑल द सब्जेक्ट्स आर सिग्निफिकेंट, सारे ऑप्शनल बहुत अच्छे हैं और बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, बट PSIR के साथ कुछ रिलेटिव एडवांटेजेस हैं, हम उन एडवांटेजेस को इस स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ PSIR? ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ PSIR। Okay, so the first thing is the success rate is good. The success rate is good.
6 to 7%, सक्सेस रेट इज गुड 6 to 7%, मीन्स जितने लोग PSIR सब्जेक्ट के साथ मेंस में अपीयर कर रहे हैं उनमें से 6 to 7% जो है 6 to 7% वो लोग ओवरऑल सक्सेसफुल हो रहे हैं, ओवरऑल में सक्सेसफुल हो रहे हैं, विच इज अ गुड रेट, बिकॉज हमारे पास 18 से 20 सब्जेक्ट ऑप्शनल में अवेलेबल हैं, उनमें से अगर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सक्सेस रेट 6 to 7% है, दैट इज क्वाइट गुड। ओके, तो PSIR के साथ सक्सेस रेट जो है वो बहुत ज्यादा है, और हम लोगों को डेफिनेटली इंपेरिकल डेटा पे ट्रस्ट करना चाहिए, बिकॉज ये ईयर बाय ईयर जो इंपेरिकली प्रूव्ड चीज है, डेटा के साथ प्रूव्ड चीज है, वो ये है कि 6 to 7% जो है, और ये बढ़ गया है, ठीक है, 6 to 7% अभी 8 to 9% चला गया है, कि 8 to 9% PSIR जिन्होंने ऑप्शनल लिया है वो कहीं ना कहीं ओवरऑल रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं। तो सबसे पहली चीज की PSIR के साथ सक्सेस रेट क्या है, अच्छा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और क्यों सक्सेस रेट अच्छा है वो हमको धीरे धीरे इस पूरी स्लाइड के एंड में समझ में आ जाएगा कि PSIR के साथ सक्सेस रेट क्यों अच्छा है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज द गुड सक्सेस रेट। ओके, नाउ व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? The second point is it overlap with the general studies. Now this is very crucial point, very crucial, very important. Overlap with the general studies. Now we are very much aware कि UPSC CSE का सिलेबस जो है वो काफी वास्ट है, उसमें आपको काफी एनालिटिकल अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ती है, उसके अलावा आपके पास बहुत सारा कंटेंट होता है पढ़ने के लिए, अलॉन्ग विद द करंट अफेयर्स, वो सारा आपको पढ़ना होता है। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि आपका अगर ऑप्शनल का सिलेबस आपके जनरल स्टडीज के सिलेबस के साथ अगर ओवरलैप हो जाता है, इसका मतलब जो कंटेंट, जो टॉपिक्स आप अपने ऑप्शनल में पढ़ने वाले हो वही टॉपिक्स आपको जीएस में भी पढ़ने, तो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है इस सब्जेक्ट को चूज करने का। और इसके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि जनरल स्टडीज के साथ आपका जो अभी हमने 4 जीएस के पेपर देखे, जीएस 1 2 3 4, इनके साथ PSIR का सिलेबस जो होता है वो काफी हद तक क्या होता है, ओवरलैप होता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर ओवरलैप करेगा तो आपको डेफिनेटली आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप एक सब्जेक्ट को अपने ऑप्शनल में पढ़ेंगे, उसी का आपको एक जो कंटेंट है वही कंटेंट आपको जीएस में भी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आप अभी देखेंगे कि ऐसे GS 1, GS 2, GS 3, GS 4, ये 4 जीएस के पेपर हम लोग जानते हैं, और इन चारों जीएस के पेपर में हमने कहा कि ओवरलैप विद द जनरल स्टडीज। अभी हम सिलेबस को डिस्कस करने वाले, उसमें हमें पता चलेगा कि कौन सा कंटेंट जो है वो ओवरलैप हो रहा है उसके साथ। तो यहां हम देखेंगे कि GS 1 की जब हम बात करते हैं, GS 1 में हम जानते हैं कि हम लोग आर्ट एंड कल्चर से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से हम फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, उसके बाद सोसाइटी, और सोसाइटी के बाद हम लोग ज्योग्राफी में आते हैं। तो ये सारा हम लोग GS 1 में देखते हैं। इस GS 1 में जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का कंटेंट है, किसका, मॉडर्न हिस्ट्री का कंटेंट, वो मॉडर्न हिस्ट्री का कंटेंट आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के, आप देखेंगे कि आपने जो अभी हमने पेपर 1 और पेपर 2 देखे थे, उस पेपर 1 और पेपर 2 में हम लोग देखेंगे कि ये देखिए, यहां हमने देखा था ये जो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाला सेक्शन है, इस इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाले सेक्शन में हम लोग इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के बारे में पढ़ेंगे फ्रॉम द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और जब हम इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के बारे में यहां पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा, और वही इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल जो है, फ्रीडम स्ट्रगल जो है इंडिया का, वो हम कहां पढ़ने वाले हैं, वापस अपने GS 1 में मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी उसको पढ़ना है और यहां भी उसको पढ़ना है, तो एक अच्छी ओवरलैपिंग मिली, और दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आप यहाँ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल स्टैंड व्यू से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, तो ये जो है इसका जो कंटेंट रहेगा, इसकी जो एनालिटिक्स रहेगी, वो आपको GS 1 में क्या करेगी, हेल्प करेगी, किसमें, आंसर राइटिंग में। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे हमको ये एक बेनिफिट मिलने वाला है। कहां मिल गया बेनिफिट, सबसे पहले हमने देख लिया कि हमको मिल गया बेनिफिट किसमें, GS में, और GS किसमें, GS 1 में हमको बेनिफिट मिल गया, दैट इज इन द GS 1। अब GS 1 में जब हम आगे चलेंगे तो हमको आगे क्या सब्जेक्ट मिलेगा,
सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर मिल गया, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री मिल गया। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद हम देखेंगे हमको पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री मिलेगी। पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में हम काफी चीजें जो है वो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या आप करने वाले हैं, उसी वाले पार्ट 2 में, पेपर 1 के पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। तो वहां पे हमको वापस एक अपर हैंड मिलेगा। फिर जीएस 1 में देखेंगे कि आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस, और उसके बाद आएगी आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत ज्यादा पोर्शन जो है वो आप कहां पढ़ने वाले हो? वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत ज्यादा पोर्शन आप कहां पढ़ने वाले हो? ये देखिए यहां आपको समझ में आ जाएगा, दिस वन, इंटरनेशनल रिलेशन वाले पार्ट में। वर्ल्ड हिस्ट्री को समझे बिना इंटरनेशनल रिलेशन समझ पाने में बहुत डिफिकल्टी आती है, और वर्ल्ड हिस्ट्री का काफी पोर्शन आप इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो वहां की वर्ल्ड हिस्ट्री और यहाँ का इंटरनेशनल रिलेशन एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, और आपको क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा। मतलब जीएस की स्टडी आपके ऑप्शनल को कॉम्प्लीमेंट करेगी और ऑप्शनल की स्टडी आपके जीएस को कॉम्प्लीमेंट करेगी। गॉट इट? तो यहां पे ये समझ में आ रहा है। अब आप नेक्स्ट देखेंगे कि जीएस हो गया, ये जीएस 1, जीएस 1 आपका हो गया कि जीएस 1 में आपको बहुत ज्यादा असिस्टेंस मिल गया। अब आप जीएस 2 पे आएंगे। किस पे आएंगे? जीएस 2। जीएस 2 का जो आपका सिलेबस है दैट इज इंडियन पॉलिटी एंड दी गवर्नेंस, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस। उसका मोर और लेस पूरा सिलेबस, जीएस 2 का मोर और लेस पूरा सिलेबस जो है वो आप किस में पढ़ने वाले हो? आपके ऑप्शनल में पढ़ने वाले हो। किस में पढ़ने वाले हो? ऑप्शनल में पढ़ने वाले हो। और वो भी कौन से पार्ट में? इस वाले पार्ट में। किसमें पढ़ेंगे आप? इस वाले पार्ट में। तो आपका मोर और लेस पूरा जीएस 2 का पेपर जो है वो आप इसके पेपर 1 के पार्ट 2 में पढ़ने वाले हो। जीएस के पार्ट में आपको पता है कि इंटरनेशनल रिलेशन भी है। जीएस के पार्ट में क्या है? इंटरनेशनल रिलेशन भी है, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस एंड दी इंटरनेशनल रिलेशन। तो पॉलिटी और गवर्नेंस वाला पार्ट आप इसमें पढ़ लेंगे। आईआर वाला पार्ट आप देखेंगे कि आपको इंटरनेशनल रिलेशन आप डिटेल में पढ़ने वाले हो फ्रॉम द वेरी स्क्रैप। तो आपका पेपर 2 जो होगा वो आपके इंटरनेशनल रिलेशन के सिलेबस को क्या कर लेगा? पूरा कवर कर लेगा। अप्रोच थोड़ी सी अलग अलग होगी ऑप्शनल की और जीएस की, बट कंटेंट जो है वो मोर और लेस क्या करेगा? एक दूसरे से कॉन्करेंस रखेगा। आई बात समझ में? तो यहां पे हमने देखा कि हमको कहां कहां हेल्प मिल गई। हमको हेल्प मिल गई सर, हमको जीएस 1 में हेल्प मिली, फिर जीएस 2 में भी हेल्प मिली, अब जीएस 3 आया। जीएस 3 में हमको बहुत ज्यादा कंटेंट का कॉन्करेंस नहीं मिलेगा, बट हम देखेंगे कि हमको जब इंटरनेशनल रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे, ये वाले इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल में, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, वर्ल्ड का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड पढ़ेंगे। उससे हमको जीएस 3 में इकोनॉमिक्स में जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला पोर्शन है दैट इज डब्ल्यूटीओ, ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन, वो वाला यहाँ क्या करेगा? अगेन कॉन्करेंस रखेगा, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद जीएस 3 में इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसके बाद एंड में हम लोग पढ़ते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में। किसमें? जीएस 3 में। जीएस 3 में जब हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली अगर हमारी इंडियन पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी और ये इंडिया का पूरा गवर्नेंस सिस्टम बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे तो वो हमको इंटरनल सिक्योरिटी में भी कहीं ना कहीं क्या करेगा? एक कॉम्प्लीमेंट करेगा और हेल्प करने की कोशिश करेगा। गॉट इट? तो जीएस 3 में भी हमको क्या हुआ? हेल्प हुआ। अब हम आते हैं किसमें? जीएस 4 में। जीएस 4 हमको पता है क्या है? एथिक्स है। एथिक्स में हम लोग एथिकल थ्योरीज पढ़ेंगे। वो थ्योरीज जो पढ़ेंगे, हम जितनी भी एथिकल थ्योरीज पढ़ेंगे उनमें से काफी कुछ कंटेंट जो होगा हमारा एथिक्स का, थ्योरीज, थिंकर्स, वो थिंकर्स हमें कहां पढ़ने को मिल जाएंगे? पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ने को मिल जाएगा। हम यहाँ प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे, एरिस्टोटल के बारे में पढ़ेंगे, सोक्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, रॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, टीएच ग्रीन के बारे में पढ़ेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर्स है जिनके बारे में हम लोग क्या करने वाले? पढ़ने वाले। उनको वहां पढ़ेंगे और डेफिनेटली उनको वहां पढ़ने से हमें एथिकल थ्योरीज में क्या मिलेगी? हेल्प मिलेगी। हमारा आंसर राइटिंग को ये क्या करेगा? कॉम्प्लीमेंट करेगा। मतलब जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 चारों को इसने क्या किया है? हेल्प किया है हमको। किसने? इस सब्जेक्ट में। दिस इज द ओनली सब्जेक्ट विच हेल्प्स यू इन ऑल द जीएस सब्जेक्ट्स। मतलब ये एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो सब में क्या करेगा? आपको हेल्प करेगा। अब आप यहां देखोगे कि हमारे पास एक सब्जेक्ट और है,
इसके पहले एक पेपर और होने वाला है एंड दैट पेपर इज एसे का जो पेपर होने वाला है, अगर आपको ये चारों पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर है और उसके बाद आप ये सारे में आप कॉम्प्लीमेंट कर चुके हो, तो डेफिनेटली ऐसे में आपको क्या मिलेगा, एक अपर हैंड मिलेगा। और वो अपर हैंड कैसे मिलेगा उसको हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पीएसआईआर की सिग्निफिकेंस इतनी समझ आ रही होगी कि चारों पार्ट अगर आपके बहुत ज्यादा क्या है, अच्छे, चारों पार्ट बहुत ज्यादा अच्छे होने पर ये हमें ऐसे GS1, GS2, GS3, GS4 सारे जनरल स्टडी सब्जेक्ट में क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा। गॉट इट। ये ऑप्शनल जीएस को कॉम्प्लीमेंट करेगा और जीएस ऑप्शनल को। गॉट इट, ये वाली बात है। चले आगे, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। Okay, so the first thing is success rate is very good, that's a positive point. Second is overlap with the general studies, जीएस के साथ ओवरलैप हमने देख लिया, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आ रहा है नो बैकग्राउंड इन द सब्जेक्ट इज नीडेड। नो बैकग्राउंड, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी यूपीएससी एस्पिरेंट जो कई सारे हैं, पॉसिबिलिटी है कि सारे लोग ह्यूमैनिटीज के बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हो, कोई किसी ने बैचलर ऑफ आर्ट्स नहीं किया हो, बहुत सारे लोग हैं जो कि बैचलर ऑफ साइंस किए होंगे, बैचलर ऑफ कॉमर्स किए होंगे, किसी ने बीटेक किया होगा, इंजीनियरिंग किया होगा, ठीक है, किसी ने कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ा होगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे, मोस्टली कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपने बैकग्राउंड में, अपनी ग्रेजुएशन में, अपने स्कूलिंग में ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट नहीं पढ़े होंगे और यहाँ पे आके उनके लिए एक चैलेंज हो जाता है कि उनको अपना कोर सब्जेक्ट चूज करना चाहिए जिस स्ट्रीम में वो है, टेक्निकल सब्जेक्ट कोई चूज करना चाहिए या फिर कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चूज करना चाहिए या फिर ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। बिकॉज मोस्टली आप देखेंगे कि ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट लेकर ही यूपीएससी कैंडिडेट्स एग्जाम को क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ उनके सामने एक डिलेमा की सिचुएशन होती है और उसी डिलेमा की सिचुएशन को यहाँ हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। यहाँ पे ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जैसे अगर आप मैथमेटिक्स कोई ऑप्शन ले रहे हैं तो डेफिनेटली विदाउट बीइंग स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि पहले अपने बैकग्राउंड में मास्टर्स किया है या फिर बैचलर्स किया है उन्होंने मैथमेटिक्स में, तभी वो क्या कर पाएंगे, मैथमेटिक्स जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ डील कर पाएंगे एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। या फिर आप साइंस का कोई सब्जेक्ट ले लेंगे, मेडिसिन ले लेंगे, तो उनके साथ आप डील नहीं कर पाएंगे, तभी कर पाएंगे जब आपका बैकग्राउंड वैसा हो। बट इस पीएसआईआर सब्जेक्ट की ब्यूटी ये है कि आपको किसी भी तरीके का बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है। आपका कोई भी बीए का या फिर आपका एमए का बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है। अगर आपका बैकग्राउंड बीए एमए का नहीं भी है तो भी आप इस सब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो और इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो, और किया है। आप एम्पिरिकली, हमारे पास डेटा है कि मोस्टली कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस का नहीं था, उन्होंने पीएसआईआर सब्जेक्ट चूज किया, इसमें बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर किया, उन्होंने उनको अपर हैंड दिया और उन्होंने यूपीएससी एग्जाम को क्लियर किया। गॉट इट। तो आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपको किसी भी तरीके का बैकग्राउंड होना इस सब्जेक्ट के साथ जरूरी नहीं है। आपको बहुत ज्यादा इसमें ये है ऑप्शनल सब्जेक्ट, बट इसमें कॉन्सेप्ट आपको काफी सारे क्या मिलेंगे, जनरल कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे जिनको समझना काफी ज्यादा क्या है, आसान है। अगर आप कंटिन्यूसली क्लास अटेंड करेंगे, आप डाउट्स पूछेंगे और इससे कंटिन्यूसली कनेक्ट रहेंगे सब्जेक्ट से, राइट कंटेंट को आप पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छा एनालिटिकल कैपेबिलिटी भी जनरेट करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स आप क्या कर पाएंगे, ग्रैस्प कर पाएंगे। गॉट इट। तो ये एक अच्छी बात है कि बैकग्राउंड किसी इस सब्जेक्ट का आपको नीडेड नहीं है, बैकग्राउंड इस सब्जेक्ट का नीडेड नहीं है। ओके, सो द सक्सेस रेट इज गुड, ओवरलैपिंग विद द जनरल स्टडीज, नो बैकग्राउंड इन द सब्जेक्ट इज नीडेड, बैकग्राउंड नीडेड नहीं है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज हेल्प इन द करंट अफेयर्स, हेल्प इन द करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में कैसे हेल्प करेगा, देखिए आप जब ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, हमने अभी जो सिलेबस देखा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इन सब में हमने ये चीज देखी कि काफी कुछ ऐसा है जो स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब जो रिटन है उसी को आपको क्या करना है, समझना है और आर्टिकुलेट करना है। तो काफी पोर्शन तो क्या है, स्टैटिक है, बट काफी पोर्शन इसका ऐसा है जो क्या है, डायनेमिक है। डायनेमिक है तो डेफिनेटली जैसे आईआर के पोर्शन को अगर आप देखेंगे, कौन से
IR इंटरनेशनल रिलेशन का जो पोर्शन है, उस IR के पोर्शन को आप देखेंगे कि आप सारी इंटरनेशनल रिलेशन का जब स्टैटिक पोर्शन पढ़ेंगे तो आप इंटरनेशनल कन्वेंशंस के बारे में, इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशंस के बारे में, कैसे रिलेशन एक कंट्री दूसरी कंट्री के बीच बनते हैं, तो डेफिनेटली IR को बहुत ज्यादा अच्छे से आप क्या करेंगे, समझेंगे। और IR को बहुत ज्यादा जब अच्छे समझेंगे तो वो आपको करंट अफेयर्स में क्या करेगा, हेल्प करेगा। बिकॉज IR जो है वो आपको डेफिनेटली प्रीलिम्स में आप देखेंगे कि 5 से 7 क्वेश्चन प्रीलिम्स में एवरी ईयर जो है यूपीएससी क्या करता है, पूछता है। तो वहां पे आपको सिग्निफिकेंस समझने में कि कौन सा कंटेंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, ये सब्जेक्ट क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा। तो जो डायनेमिक पोर्शन है आपके ऑप्शनल का, वो आपको करंट अफेयर्स में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। या फिर ऐसा कह सकते हो कि आपको अपने ऑप्शनल के लिए जो करंट अफेयर्स पढ़ना होगा, वो करंट अफेयर्स आपको जीएस में भी क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा। गॉट इट? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप देखेंगे कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल कि आप एंथ्रोपोलॉजी ले लेंगे, एंथ्रोपोलॉजी या अन्य सब्जेक्ट, आई एम नॉट सेइंग कि कोई सब्जेक्ट अच्छा है या बुरा है, नहीं, ऐसा नहीं है, सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं। बट यहां हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि जो रिलेटिव एडवांटेज PSIR के साथ है, हम उसको क्या करना चाह रहे हैं, डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहां हम देख रहे हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, एग्जांपल के लिए एंथ्रोपोलॉजी ले लेंगे या आप कुछ और सब्जेक्ट ले लेंगे, उनके साथ ऐसा देखेंगे कि उनका करंट अफेयर्स जो है, बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स है नहीं उनमें, काफी स्टैटिक पोर्शन है। बट जहां मिलेगा भी वो करंट अफेयर्स कहीं आपको जीएस में कहीं कॉम्प्लीमेंट करने वाला नहीं है। बट यहां ओवरलैपिंग सिलेबस की वजह से आपको क्या होगा, दोनों में हेल्प मिलने वाली है। सो दैट्स वन मोर थिंग। ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, हेल्प इन द यूपीएससी इंटरव्यू। यूपीएससी इंटरव्यू में आपको क्या मिलने वाली है सर, हेल्प मिलने वाली है। अब कैसे इंटरव्यू में हेल्प मिलने वाली है, देखिए बहुत आसान सी बात है। इंटरव्यू में हेल्प कैसे मिलेगी, उसके लिए सबसे पहले हमको ये जो सेंटेंस यहां लिखा हुआ है, इसको समझना क्या है, थोड़ा जरूरी है कि आप जो पॉलिटिकल साइंस IR पढ़ने वाले हैं, उस पॉलिटिकल साइंस IR में आप पढ़ने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज द पॉलिटिकल थ्योरी। क्या होती है पॉलिटिकल थ्योरी, अभी हम टेक्निकल बातें नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ सब्जेक्ट की सिग्निफिकेंस को समझ रहे हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी की जब मैं बात करता हूं, पॉलिटिकल थ्योरी में आप ये समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली पॉलिटिक्स इवॉल्व कैसे हुई फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। पॉलिटिक्स इवॉल्व कैसे हुई, हम एनार्किकल सोसाइटी से कैसे एक सिविलाइज सोसाइटी की तरफ गए हैं और अभी भी जा रहे हैं। ठीक है, सिविलाइजेशन इज ऑनगोइंग प्रोसेस, अभी भी चल रहा है। तो हम एनार्की से, हम हंटिंग गैदरिंग से आज एक पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन गए हैं। तो ये जो पूरा इवोल्यूशन है, इस इवोल्यूशन में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कैसे इवॉल्व हुए, कैसे हमको नीड फील हुई कि हमको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहना है, हम एज ए सोसाइटी कैसे सिविलाइज हुए, और हमको क्यों पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की क्या पड़ी, जरूरत पड़ी। और इसी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की नीड के बेसिस पे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बने, और उस पर पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने अपने क्या दी, ओपिनियन दी कि हम सोसाइटी को और इस पॉलिटिकल सिस्टम को, जो कि कमांड और ओबीडियंस बेस्ड सिस्टम है, उसको हम कैसे क्या कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। उसी पर पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने क्या दी, अपनी ओपिनियन दी। और जब हम हमारे चारों ओर चलने वाली सोसाइटी को अच्छे से समझेंगे कि सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुई, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कैसे इवॉल्व हुए, और उस पर नए नए कॉन्सेप्ट्स और पॉलिटिकल फिलोसफर्स जो कि बहुत ज्यादा एनलाइटेंड लोग थे और उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट्स दिए, उन कॉन्सेप्ट्स को जब हम पढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग को क्या करेगा, टच करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिलॉसफी या पॉलिटिकल थ्योरीज पढ़ने का। फिलॉसफी और पॉलिटिकल थ्योरीज, पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ने का जो फायदा है सबसे बड़ा, वो ये है कि अभी तक हमने बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नहीं पढ़ी, अगर हमारा बैकग्राउंड वैसा नहीं रहा है तो हमने बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नहीं पढ़ी जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत ज्यादा क्या करे, टच करे। साइंस डेफिनेटली करता है, रीजन डेफिनेटली करता ही है, लॉजिक डेफिनेटली करता ही है, बट उसी लॉजिक और साइंस को कहीं ना कहीं अगर हम ह्यूमैनिटीज में यूज करेंगे तो वो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को क्या करता है, टच करता है। और क्रिटिकल थिंकिंग को टच करता है तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिटिल बिट ही सही बट एनलाइटेंड फील करते हैं, हम बेहतर महसूस करते हैं, हम जिंदगी को ज्यादा अच्छे से समझने की क्या करते हैं, कोशिश भी करते हैं, और हम समझ भी पाते हैं। ठीक है, तो यहां इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम पॉलिटिकल थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, 5 या 6 पॉलिटिकल थ्योरिस्ट को पढ़ने के बाद आपको डेफिनेटली बेटर फील होगा, एनलाइटेंड फील होगा, और वो एनलाइटनमेंट जो है वो कहीं ना कहीं आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए कई बार ये होता है कि हम पढ़ रहे होते हैं बट हमारे अंदर एक एनालिटिकल कैपेसिटी जनरेट नहीं हो पाती, हम लोग मल्टी डायमेंशनली सोच नहीं पा रहे होते हैं।
ठीक है, हम आज पढ़ रहे हैं, कल हम क्या कर दे रहे हैं, भूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ आ रहा है, बट हम उसको क्या नहीं कर पा रहे, ग्रैब नहीं कर पा रहे, ग्रैस्प नहीं कर पा रहे। वो क्यों हो पा रहा है, उसके पीछे कारण कई सारे हैं, बट उसका वन ऑफ द रीजन ये भी है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग की क्या है, कमी है। हमने अपने आप को उतना एनालिटिकली कैपेबल नहीं बनाया है। और अगर हम अपने आप को एनालिटिकली कैपेबल बनाना चाह रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली हमको क्या करना चाहिए, फिलॉसफी पढ़ना चाहिए। पॉलिटिकल फिलॉसफी तो डेफिनेटली हमको क्या करने वाला है, हेल्प करने वाला है। और फिलॉसफी पढ़ना ही चाहिए, ये लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जब ऐसा सब्जेक्ट जो कि लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ऑन दी अदर हैंड हमको एक बहुत अच्छी ग्रैंड सक्सेस भी दिलाने वाला है, हमें एक सीएसई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्लियर करने में एक पुश भी देने वाला है, तो हमारे लिए तो सोने पे सुहागा है कि हमें लाइफ में भी एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा, अलॉन्ग विद दैट हमें सब्जेक्ट क्लियर करने में भी क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। और ये चीज आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी कॉमन पार्लेंस में कि दोज स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम द पॉलिटिकल फिलॉसफी और फिलोसफिकल बैकग्राउंड, दे ऑलवेज mostly they know how to articulate things. I'm not saying this is very general thing or the philosophy is above or humanities above the science. No, I'm not saying this. I'm saying all the subjects are important, but here when we are talking about the significance of PSIR, in this definitely political philosophy will help you having a critical thinking and the analytical capability. Got it? So this is the most important and this is utmost advantage of the studying PSIR, utmost. Okay, so the political theory develops critical and analytical thinking, which helps you write a better articulated answer. Now this is very important thing, because you have to write answers, you have to write so many answers. Okay, ऐसे से लेके GS 1 2 3 से लेके GS 4 तक और ऑप्शनल 1 से 2, इन सब में आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग करनी है। और वो आंसर राइटिंग में अगर आपकी एक क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग हेल्प करती है, तो डेफिनेटली इसको डेवलप करना चाहिए। अगर एक क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग आपको बेटर आंसर राइटिंग में हेल्प कर रही है, तो क्यों आप इसको डेवलप ना करें। और इसको डेवलप करने का तरीका है हमारे पास, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द वे, आई एम नॉट सेइंग दिस इज द ओनली वे, दिस इज वन ऑफ द वे। Okay, reading philosophy and the political theory is one of the way to develop the critical thinking. So helps you write better articulated answer. Your answers will be definitely better than others. Okay, better than others. अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे से इसको पढ़ते हैं, तो जब हमको पता है कि सब में हमको क्या करना है, आंसर लिखना है, और आंसर राइटिंग के लिए क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, और क्रिटिकल थिंकिंग को पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलोसफी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे एनहांस करने में। सो डेफिनेटली वी विल गो विद दिस सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट चूज करने का एक बहुत जो मुझे सबसे सिग्निफिकेंट पॉइंट लगता है वो यही है, जो कि ये जो है, ये ऐसा नहीं, अदर सब्जेक्ट्स में भी आपको ये क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने का क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द PSIR। ओके, सो बेटर आर्टिकुलेटेड आंसर्स इन मेंस एंड आल्सो इन प्रेजेंटिंग योरसेल्फ मोर एक्सप्रेसिवली। मतलब अपने आप को बेटर तरीके से प्रेजेंट करने में भी क्या करेगा, ये सब्जेक्ट हेल्प करेगा। और वो अच्छा, अगर आप बेटर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, so this presentation is all about your interview, your personality test. They are not checking your your aptitude, although they are, but aptitude nahi check kar rahe. More or less they are trying to check your attitude. Aptitude is definitely जरूरी है। एटीट्यूड के बिना आप, एप्टीट्यूड के बिना आप एटीट्यूड लाने में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। बोथ आर इंपॉर्टेंट, एटीट्यूड एंड द एप्टीट्यूड, बट एप्टीट्यूड मोर और लेस उन्होंने आपके मेंस में चेक कर लिया। हियर दे आर ट्राइंग टू चेक योर एटीट्यूड, कि आपका एटीट्यूड कैसा है, ओके, हाउ यू आर टेकिंग थिंग्स। सो बेटर आर्टिकुलेशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। ओके, इफ योर एटीट्यूड, if you can say that you have right things, right thoughts within you, but you are unable to explain it, you are unable to articulate it in front of the people who are going to decide whether you are clearing exam or not, then somewhere वो कहीं ना कहीं लैग कर जाएगा। तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ यही करेगा, बट ये आपको हेल्प करेगा, ये डेफिनेटली, दिस इज द सर्टेन थिंग। Okay, so both answer writing and also expressing yourself in a effective way, both the things will come from the studying political theory. Got it? So this is one more benefit. Now what is next? Last is the
many toppers with political science optional. Now this is not very significant point, but it is, because this is empirically proven. There are so many toppers with PSIR optional. बहुत सारे टॉपर्स हैं जिन्होंने PSIR ऑप्शनल को चूज किया, जिनका ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड नहीं भी रहा है, कुछ का रहा है, बहुतों का नहीं भी रहा है। तो PSIR ऑप्शनल के साथ अगर आपको काफी टॉपर्स मिल रहे हैं, तो अगर, और ये एम्पिरिकली प्रूवन है, पिछले 10 साल का डेटा अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि काफी टॉपर्स हैं टॉप 100 में, जिनका ऑप्शनल जो है वो PSIR है। तो इस ऑप्शनल के साथ एक ये फायदा तो जुड़ा हुआ ही है कि टॉपर्स इस सब्जेक्ट के साथ हैं। तो आपको ये समझ में आएगा, जब टॉपर्स इस सब्जेक्ट के साथ है और टॉपर्स का जो हम रिपोर्ट कार्ड देखते हैं कि उन्होंने मेंस में कैसा स्कोर किया है, तो आप देखेंगे कि 300 प्लस मोर और लेस सारे टॉपर्स जा रहे हैं इसमें ऑप्शनल। ओके, सो ये भी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट कि अगर आप अदर ऑप्शनल के साथ सिर्फ 250 प्लस ही जा पा रहे हो या 275 जा रहे हो, और यहां पे अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप 300 प्लस जा सकते हो, तो अगर आप 10 से 20 नंबर या 30 नंबर तक अदर कैंडिडेट से ऊपर हैं, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा रैंक पाने वाले हो और आपको आपकी सर्विसेज में डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर तो आप सभी करेंगे, ठीक है, बट आपकी सर्विसेज में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, आप IPS से IAS की तरफ जा सकते हैं। गॉट इट? सो दैट्स द थिंग। सो these are all the benefits with the political science optional subject. So again, revisit: good success rate, overlap with general studies, no background is needed, help in the current affairs, help in the UPSC interview also, and many toppers with the PSIR optional. So these are the relative advantage of the political science and international relation subject. So I hope this information will definitely help you कि आपको कौन सा ऑप्शनल चूज करना चाहिए, और डेफिनेटली PSIR ऑप्शनल चूज अगर आप करते हैं तो आपको एक अपर हैंड मिलेगा, और आपको एक जो मिसकंसेप्शन है कि PSIR का सिलेबस बहुत लेंदी है, PSIR का सिलेबस बहुत लेंदी है, उस मिसकंसेप्शन को थोड़ा सा दूर करते हैं। चलिए, उसके बाद इस सेशन को यहां एंड करेंगे कि PSIR का सिलेबस बहुत लेंदी है। आप ये देखेंगे कि PSIR में आपको 4 पार्ट मिल रहे हैं, पर आपको ये समझना होगा कि ये लेंदी सिलेबस है या नहीं है। क्यों नहीं है? हो सकता है कि इसमें आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, पर इस काफी सारे कॉन्सेप्ट में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देख ली। क्या देख लिया? कि बहुत सारा जो है वो क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। सिलेबस क्या कर रहा है सर? ओवरलैप कर रहा है। जब सिलेबस ओवरलैप कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि आपको काफी सारी चीजें क्या करेगी, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाली मिलेगी, और कॉम्प्लीमेंट करने वाली मिलेगी तो कोई भी चीज आपको ऐसी नहीं पढ़नी है जो कि आपको जीएस में हेल्प नहीं कर रही। इसका मतलब ओवरलैपिंग आपको क्या दे रही है, एक बेनिफिट दे रही है। ये आपको मिल गया, ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और सेकंड चीज कि आप जब पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे तो वही क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग वाली बात है, वो वाला जो एंड आपको मिलेगा वो यू माइट नॉट गेट इन द अदर सब्जेक्ट्स, हियर यू विल गेट। ओके, और ये ओवरलैपिंग होने से क्या होगा, इस ओवरलैपिंग की वजह से आपका जो मोर और लेस जो आप कहते हैं लेंदी सिलेबस है, वो डेफिनेटली क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। कम नहीं होगा बट वो कॉन्करेंस रहेगा कि हाँ उसमें भी पढ़ना है इसमें भी पढ़ना है, तो काफी कुछ क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट सिलेबस किसी सब्जेक्ट का रहे ऑप्शनल का, और शॉर्ट सिलेबस के साथ अगर आपको ये वाला बेनिफिट नहीं मिले, ये वाला क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग वाला बेनिफिट अगर नहीं मिलता है, तो आप सोचिए कि क्या आपको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। सिलेबस शॉर्ट होगा, यू माइट गेट सेम मार्क्स एज PSIR, ठीक है। आप अगर PSIR ऑप्शनल के साथ मान लो कह रहे हैं कि 300 ले आते हैं, और आप कोई और सब्जेक्ट लेते हैं उसमें भी आप 300 ले आते हैं, या दोनों में सेम ले आते हैं, बट कुछ एडवांटेजेस, कुछ बेनिफिट्स ऐसे हैं जो इन सब्जेक्ट के हैं, PSIR के हैं, वो आपको इधर नहीं मिलेंगे। गॉट इट? ये आपको सोचना है। तो ये लेंदी वाला जो एक मिसकंसेप्शन है कि PSIR का सिलेबस बहुत लेंदी है, उस पर मिसकंसेप्शन पे आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि सिलेबस लेंदी बड़ा हो सकता है दिखने में, बट मोर और लेस चीजें जो हैं वो आपको अच्छे से समझ आएगी, और आप अच्छे से आर्टिकुलेट उनको कर पाने में क्या होंगे, सक्षम होंगे। आई होप दिस सेशन विल हेल्प यू
और आप PSIR सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ेंगे और डेफिनेटली PSIR के साथ आगे बढ़ेंगे और 300 प्लस का टारगेट जो है और उसको 325 तक भी इनहांस किया जा सकता है अगर हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी रखते हैं और रेगुलरली क्या करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे। गॉट इट। और हमारा जो पॉलिटिकल साइंस IR का ऑप्शनल बैच स्टार्ट हो रहा है, इस बैच में हम लोग अभी आपको जो सेकंड सेशन मिलेगा इसी में PSIR ओरिएंटेशन का, उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम PSIR ऑप्शनल को कैसे अप्रोच करने वाले हैं और हमारा जो टारगेट रहेगा वो टारगेट 325 प्लस का टारगेट है। हमारा जो ऑप्शनल में स्कोर का टारगेट है वो 325 प्लस का टारगेट है एंड वी कैन अचीव इट। ओके, अगर हमारी स्ट्रेटजी सही रहेगी, अगर हमें परसिवरेंस और कंसिस्टेंसी रहेगी तो डेफिनेटली 325 प्लस हम लोग स्कोर कर सकते हैं PSIR में। ओके, सो हम नेक्स्ट सेशन में ये डिस्कस करेंगे हम लोग कैसे 325 प्लस जा सकते हैं और कैसे हम इस सब्जेक्ट को अप्रोच करने वाले हैं। ओके, आई होप दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। ओके, सो मिलते हैं बहुत जल्दी दूसरे सेशन में। ओके, थैंक यू सो मच।